In the next 90 minutes, you're about to discover how I created these two powerful scenes inside After Effects. And trust me, if you combine scenes like this and deliver it to your client, then you can easily charge hundreds of dollars per project. And the same I am doing right now. Just 2 months ago, I started motion graphics series, and this video is part number 2 of that 3-part journey. And if you haven't watched part number 1, I highly recommend you to watch the part number 1 first, because today we are going to take things to the next level. And the best part, I built entirely inside After Effects. This is going to be insane. So before starting this video, make sure to hit the like button and subscribe to the channel. And now finally, let's get started. So alright, at number first, we are going to create the animation something like this. A professional Instagram profile animation, and after that a graph with dollar animation. So yeah, just start. As you can see my screen, we are going to open After Effects. I am using a 2025 version. You can use whatever. Just simply follow my steps. So after opening After Effects, I will simply click on new project, and the After Effects will show you interface something like this. After that, just click on new composition and make a composition. Add a composition name something like animation number 1. And for size adjustment, your size should be 9020 width and 1080 height. After that, I have to make a duration like 30 seconds is enough. I will simply click on OK, and this is our sequence ready. After that, I will simply open Photoshop as well, and meanwhile I have to collect my assets like Instagram screenshot. Alright, I have to take a screenshot, and I am simply going to my Instagram own profile, something like this, and yeah, that's totally okay. And then I will simply go to my Photoshop and click on new file. Okay, I have to make a document something like 9020 width and 1080 height, also 300 resolution. Just click on create, and here we go, the canvas is ready. I will simply paste my screenshot that I captured recently, and then after placement the screenshot something look like this. So still I have to zoom in a little bit as well, something like this. And yeah, make sure to add these icon, not any further thing. इसके आगे जो भी चीजें इसके नीचे आपको वो ऐड नहीं करनी है, just these icon is totally okay. Now we are going to make everything separately, like the profile picture, the username, the blue tick, and everything. And seriously, I know I can do the same in After Effects as well using masking, but I am not using After Effects for this. I will simply go to here and take a rectangle marquee tool and yeah, start separating your layer. Select your profile picture and then press Ctrl J. And after cutting it, then again select your full screenshot. After that, we have to cut the screenshot. Follow this process for whole each and everything. अच्छा, ऑल्सो मेक श्योर कि आप लोग जो भी सेव करते रहो वो 1-2 के नाम से हो, ताकि हम जब भी इस पे एनिमेशन डालें तो हमें इजी हो लेयर्स को प्लेस करना. ओके, लाइक दिस, लाइक ये हमारे पास यूजर नेम है. आई विल सिंपली गो हियर एंड सेव इट एज 2. ओके, okay, now it's time to cut out the highlights as well, and the same thing I am following in the highlights. So finally the task is completed. Everything in separate parts is already uploaded in our folder here. Okay, as you can see here, everything is showing like this, and the main thing all is as PNG. Okay, not JPEG, without background. Alright, so I just need to go back in my After Effects from 1 to 22 and just import it. Okay, first of all I will save a file called After Effects. Before drag and drop these PNGs in my main timeline, I just need to have right click, go to new and make a solid like this in a darker gray. Okay, जो भी आप color select करना चाहो कर सकते हो, because we are going to add a fill and we will change the color as well. Okay, just go to effect and preset and click on fill and double click on, and then आपको ग्रे कलर चूज करना है. ओके, दिस इज नॉट अ फाइनलाइज्ड कलर. आफ्टर प्लेसिंग ऑल द PNGs like this, यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा. दैट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल, बिकॉज कलर सेपरेशन एज यू कैन सी हमारी जो भी PNGs हैं वो डार्क ग्रे कलर की हैं, हमारा बैकग्राउंड लाइट ग्रे कलर का. दैट इज व्हाई आई विल सिंपली गो टू माय बैकग्राउंड लेयर अगेन and effect control, just pick this slider from fill and click this color on this color, and now our background color will match on the PNG background color as well. Okay, that's a win-win situation. I will simply make it fit like full. Okay, as you can see, here's my all the screenshots. Okay, then I am going to use a Precitify plugin, and if you don't have this plugin link, just find the link in the description. Okay, just download it. After that,
from 1 to 22, I will simply select all the layers and click on bounce text. इससे क्या होगा कि हमारा पूरा स्क्रीनशॉट बाउंस होने लग जाएगा लाइक दिस। बट हमें ऐसा नहीं करना। एज यू कैन सी माई प्रीव्यू, हमें कुछ इस तरीके से लाना है। इस तरीके से लाने के लिए वी हैव टू मेक द स्ट्रगल। सबसे पहले मैं अपनी टाइमलाइन को थोड़ा एडजस्ट कर लूंगा लाइक दिस। 1 वाली लेयर पे जाऊंगा एंड यू दबाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास की फ्रेम है। अब हमें इसकी पोजीशन के जो स्क्रिप्ट है हमें इसको चेंज करना है। ओके, मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। सो राइट गाइस, टू ऐड मोर एंड ट्रेंडिंग बाउंस इफेक्ट्स इन आवर PNGs, we have to use this script. I will simply make and copy here. You can simply find this script in the description or first comment as well. I will simply go back to my After Effects and as you can see हमने एक बाउंस इफेक्ट लगाया था। तो हमने U दबाया है और हमारी जो पोजीशंस हैं वो ऐसी दिखेंगी, बट हमें इसको एडिट करना है। अभी क्या हो रहा है लाइक दिस, अभी हमारा थोड़ा सा बाउंस हो रहा है, देख सकते हो एज यू कैन सी, बट हमें इससे ज्यादा बाउंस चाहिए। लाइक ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रहा है एप्पल स्टाइल में, ये वाले बाउंस से हमारा काम नहीं चलेगा, तो वी हैव टू मेक मोर बाउंस इफेक्ट। ओके, मैं क्या करूंगा, अपनी पोजीशन की सारी सेटिंग्स को खोलूंगा लाइक दिस, इस पर डबल क्लिक करूंगा, इसको मैं सिंपली रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे जितना भी हमारे पास कोडिंग पड़ी हुई थी, डेटा पड़ा हुआ था, एक्सप्रेशंस थे, सबको मैं रिमूव करके कंट्रोल V जो हमने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एंड नाउ एज यू कैन सी हमारा जो लोगो होगा वो ज्यादा बाउंस होगा। देखिए, जस्ट फोकस ऑन मी, ओके, नॉट ऑन द होल स्क्रीनशॉट। ओके, एज यू कैन सी सिर्फ अभी हम लोग ने येलो वाली प्रोफाइल पिक्चर पे डाला है और यही सारी चीज मुझे सब पे करनी है। सो सिंपली मैं सारी यही चीज सब पे कर दूंगा लाइक U एंड एडिट इट समथिंग लाइक दिस। इस पे भी मैं आऊंगा, W करूंगा, and finally we are adding the same in our last layer as well. Okay, to close this layer I will simply click on the layer and click on U. After pressing U, your layer will simply close all the properties. Alright, so our screenshot will look something like this. Too much bounce effect and that's look to be honest really nice like this. Still अब हमें एक एक चीज को सिलेक्ट करना है। लाइक पहले प्रोफाइल पिक्चर आया, फिर मेरा यूजर नेम आया, उसके लिए मुझे क्या करना है, अगेन मैं जूम करूंगा एंड दिस इज अवर फर्स्ट लेयर। मैं थोड़ा सा आगे आऊंगा, यहाँ से मैं अपनी सेकंड लेयर को स्टार्ट करूंगा, देन ऐसे ही मैं अपनी थर्ड लेयर को यहाँ से स्टार्ट करूंगा एंड द पेव ईच एंड एवरीवेयर। यही सारी चीज मैं सबके लिए फॉलो करूंगा। जो प्रीवियस लेयर होगी वो नेक्स्ट वाली लेयर से आगे जाके स्टार्ट होगी। ओके, प्रीवियस वाली को हमें पहले रखना है एंड देन द नेक्स्ट वाली है उसको हमें आगे रखना है एंड दैट्स फॉलो फॉर ईच एंड एवरी लेयर। नाउ एज यू कैन सी something look like this. We are facing some mistakes as you can see, something like this. So मैं क्या करूँगा सबसे पहले, so to avoid this as you can see here some bug, so I will simply place all of my top layer and drag it in the last. Now as you can see our animation something look like this. Like, do you really think this is good? This is not good because the reason is there is too much bounce effect. As you can see here, there's too much. Okay, I just need to make sure to fix this. So simply alright, so that looks really amazing. I really impressed with my editing and that's why I called me as a professional video editor. ओके लुल, एंड देन मैं टॉप पर आऊंगा एंड राइट क्लिक करूंगा। न्यू पे जाने के बाद आई विल सिंपली क्लिक ऑन एडजस्टमेंट लेयर बिकॉज आई हैव टू एड अ डीप ग्लो। I will simply add a deep glow something and now I have to optimize it because बहुत ज़्यादा deep glow हो रहा है इधर। 500 को थोड़ा सा मैं less कर दूंगा something like this and exposure को भी obviously बहुत ज़्यादा मैं कम करना पड़ेगा। After that I have to make a camera and before making a camera include adjustment layer I will simply select all those layer, all those PNG include adjustment. I will simply make it all 3D. Okay. After that मैं एक राइट क्लिक करूंगा, न्यू पे जाने के बाद मैं एक कैमरा ले लूंगा something like this. Okay, copy my camera settings to node camera 50mm camera number 1. That's it. That's all settings. राइट क्लिक करूंगा अगेन एंड आई हैव टू मेक अ नल ऑब्जेक्ट एज वेल। सिंपली पेरेंट एंड लिंक कर दूंगा कैमरे को अपने नल ऑब्जेक्ट के साथ। आफ्टर दैट आई हैव टू मेक अ स्लाइड जो हमारे सीन को मूव करवाएगी ताकि हमारा ग्रोथ ग्राफ आ सके। एज यू कैन सी यहाँ पर एक एनिमेशन है मेरी, यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम का पेज आता है, ये मैंने ही बनाई थी एंड देन थोड़ा सा हमारे पास स्लाइड भी हो रहा है। एज यू कैन सी अगेन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड भी हो रहा है, देन हमारे पास हमारा ग्राफ आ रहा है। बिफोर मेकिंग द ग्राफ वी हैव टू मेक दिस सीन कंप्लीट एंड टू मेक दिस सीन कंप्लीट आई विल सिंपली गो अहेड
हेड जहाँ पे हमारी एनिमेशन एंड हो रही है, समथिंग लाइक दिस। मैं पी दबाऊंगा, सिंपली पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाना है। सबसे पहले मैं अपनी इनर ऑब्जेक्ट को भी 3D कर लूंगा एंड देन मैं थोड़ा सा इसको मूव करवा दूंगा, थोड़ा सा, लिटिल बिट, ओके, नॉट टू मच, थोड़ा सा। इससे क्या होगा, जब भी हमारा नेक्स्ट सीन आएगा वो भी ऐसे ही आएगा, उसका अपोजिट आएगा, तो इससे एक छोटी सी ट्रांजिशन बन जाएगी। एंड देन आई विल सिंपली सेलेक्ट बोथ की फ्रेम्स, प्रेस F9, गो टू स्लाइडर कंट्रोल एंड मेक ईज समथिंग लाइक दिस। सबसे पहले मैं इसको क्वार्टर पे कर लूंगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मूव हो रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब जब ये मूव हो रहा है तो वी जस्ट हैव टू कट द सीन और यहाँ से हमारा ग्राफ आ जाएगा। ओके, जस्ट मैंने ऊपर वाली ले को सिलेक्ट करा है, शिफ्ट कंट्रोल और डी दबाना है और सारा आपके पास सेपरेट हो जाएगा। जो बाद में हमारे पास सेपरेट हुआ है उसको डिलीट कर दूंगा सिंपली एंड देन हमारे पास कुछ ऐसा प्रीव्यू आएगा, बाउंस होगा ये एंड थोड़ा सा उधर जाएगा एंड देन हमारा सीन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अवर ग्राफ एनिमेशन कम्स इन, सो वी जस्ट नीड टू मेक बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक अवर ग्राफ एनिमेशन नाउ। मैं सिंपली टॉप पे आऊंगा, राइट क्लिक करके आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सॉलिड एंड मैं सॉलिड बना लूंगा। ओके, एंड देन आई विल सिंपली गो टू इफेक्ट एंड प्रीसेट एंड आई हैव टू सेलेक्ट 4 कलर ग्रेडियंट लाइक दिस एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। सो राइट, जो हमारा कलर नंबर 4 है वो ब्लू है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। उसके जो कलर कोड है उसको मैं कॉपी कर लूंगा, इसको सिंपली मैं पीछे ले जाऊंगा। ओके, इसको ब्लैक कर दूंगा। कलर नंबर 2 शुड बी ब्लैक, कलर नंबर 1 शुड बी ब्लैक। इसकी जो मैंने कलर कोड कॉपी किया है इसको भी मैं कॉपी करूंगा एंड थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूंगा। ओके, नाउ कलर नंबर 1 पे मैं वही सेम कलर कोड पेस्ट करूंगा और इसको मैं जूम आउट कर दूंगा, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मैं इसको ब्लैक को बढ़ा लूंगा, इससे होगा हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा 4 कलर ग्रेडियंट। हमारा जो 2 पॉइंट्स है वो ब्लैक से एंड 2 पॉइंट ब्लू है, दैट्स कॉल्ड 4 कलर ग्रेडियंट बेसिकली। एंड आफ्टर देन दैट आई हैव टू इनेबल द गाइडलाइंस। आई विल सिंपली गो हियर, टाइटल, एक्शन, सेव एंड नाउ वी हैव टू मेक 2 मेन लाइंस। ठीक है, जो हमारी ग्राफ की मेन लाइंस होंगी, उसके बाद भी हम कुछ लाइंस बनाएंगे, बट ये जो मेन लाइंस है उसको मैं बनाऊंगा। सबसे पहले आई विल सिंपली गो एंड प्रेस राइट क्लिक, गो टू न्यू एंड शेप लेयर। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक शेप लेयर बन जाएगी। पहले वाली को मैं कट कर दूंगा, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होने चाहिए। नाउ आई विल सिंपली गो एंड सेलेक्ट माय पेन टूल, स्ट्रोक पे जाऊंगा एंड स्ट्रोक को सॉलिड करूंगा and make it 12 and white color. Okay, will be the starting point and the ending point should be like this and same continue with something like, मैं fill पे जाऊंगा, fill को none कर दूंगा and our strokes should be like this. इसको align कर लेंगे सबसे पहले and yeah, that's really good. Okay, after that I can simply place gradient ramp here. Starting color should be the same like background color. Copy the color codes and go to end color, paste it and make it light, little bit like something like this. So अगर मैं इसको titles and grid को ऑफ करूँ, then our main graph main lines should be look like this and I will simply add a deep glow as well. That's really good. And now it's time to add some basic line as well, जहाँ पे हमारा ग्राफ शो होगा like 4 to 5 lines, तो बहुत ज्यादा लो ऑपेसिटी में होंगी। मैं राइट क्लिक करके शेप लेयर बना लूंगा अगेन एंड इसको डिलीट कर दूंगा एंड देन द डिफिकल्ट टास्क लाइक इसमें मुझे रिटेक्स लेने पड़ते हैं, ऑब्वियसली रिटेक्स लेने पड़ते हैं क्योंकि कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है। आई विल ट्राई टू मेक लाइन फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, दैट्स रियली गुड। स्ट्रोक शुड बी लाइक अराउंड 7% मे बी, या इसकी जो प्लेसमेंट है मैं अपनी मेन लाइन से नीचे रखूंगा ताकि ये ऐसी ना हो, ये हमें ऐसी देगा, ऐसा प्रीव्यू दे सके। ओके, इसकी ऑपेसिटी को मैं कर दूंगा सिंपली 15, काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो मैं इसको कर दूंगा 35। और एक जो हमारी मिस्टेक है एंड देन इसी के साथ मैं मेन लाइन पे आऊंगा, पेन टूल लेकर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। वी नीड टू मेक इट समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक this. Okay, now just press Ctrl D and keep copying your layers and make something like this. So that's how our final look like this. I will simply extend it and go to my preset and drag and drop a deep glow, place in every layer, something like this. Okay, we are going to make the opacity to 35. Now I have to make a main line जो हमारा growth graph होगा actually में। So to do that I have to make another shape layer. Of course I will simply make it label as Draghi, तो हमें काफी ज़्यादा confusion का face ना करने पड़े। I will simply take pen tool and draw a line. Like इस पे काफी ज़्यादा retakes आपके हो सकते हैं because it's your first time. Yeah, finally congratulations, our line draw successfully because that's the worst and most difficult part. Line draw नहीं होती कभी भी straight. Okay, I will simply make sure to add a deep glow as well and after that I am going to add a gradient ramp as well. Same I did for the main lines as well. हमारी जो पीछे की lines हैं इसको भी मैं थोड़ा सा, जो भी बंदा काफी ज्यादा like darkness में देखेगा उसको दिख जाएंगी line because that's not important to view all those lines and that is why the important part is done.
Okay, to animate this, we are going to add trim path. Okay, to do that, I have to go here and click करूंगा मैं add पर and trim path add कर दूंगा यहाँ पर something like this. Start and end पे मुझे की फ्रेम लगाना है and then end के की फ्रेम को मैं 0 कर दूंगा, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, start को मैं 100 कर दूंगा, दोनों को F9 and easy again once more. Okay, as you wish. आपको जैसे अपने की फ्रेम को रखना है, बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, that's too much fast. मैं क्या करूंगा, दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, F9 अगेन दबाऊंगा और मैं अपने स्लाइडर को कुछ ऐसा रखूंगा कि बीच में हमारा ग्राफ एनिमेशन फास्ट हो. ओके, एज यू कैन सी यहाँ पर एक हमारी एक क्रेजी एनिमेशन हो गई है. एक पहले वो स्लो आता है, फिर बहुत ज्यादा फास्ट होता है, फिर एकदम से दोबारा स्लो हो जाता है. सो दैट्स कॉल्ड स्पीड रैंपिंग. आप जो चाहो कर सकते हो. सो यहाँ तक हमारा काम बिल्कुल फाइनलाइज हो चुका है. आई विल सिंपली सेलेक्ट ऑल दूस लेयर, मेक इट 3D बिकॉज 3D कैमरा यहाँ पर लगेगा एंड यहाँ का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा. ओके, एंड देन अगेन मैं 3D कैमरा बनाऊंगा, राइट क्लिक कैमरा एंड नल ऑब्जेक्ट एज वेल, मेक इट 3D पेरेंट एंड लिंक कैमरा टू द नल ऑब्जेक्ट. ओके, नल ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मैं की फ्रेम लगाऊंगा एंड अपने की फ्रेम को मैं आगे भेज दूंगा. अब हमारा जो सीन है वो कुछ इधर से स्टार्ट होगा. ओके, समथिंग लाइक दिस. ओके, हमारा आपको याद होगा जो पिछला सीन है वो इस तरफ जा रहा है एंड ये राइट से लेफ्ट पे आ रहा है और हमारे जो जिसको हम सीन को गुड बाय कर रहे हैं वो राइट से लेफ्ट पे जा रहा है. ओके, तो उसका अपोजिट हमें करना है ताकि एक स्मूथली ट्रांजिशन लगे. ऐसा ही दोनों को सिलेक्ट करूंगा, F9 एंड अगेन लाइक दिस. ओके, मेक इट क्वार्टर एंड जैसे ही यहाँ पे जाना शुरू हुआ है ऐसे जहां से हमारा ये वाला सीन स्टार्ट हो जाएगा. मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, लाइक दैट्स टू मच स्लो. As you can see, this is called a smooth animation. This is called a smooth transition. Basically, over little work like add a big impact. So to be honest, ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी क्रिएटिविटी थी कि आपने पहले उसको यहाँ से यू भेजना है और थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़ में. बट anyway, the end result as I told के and the end result will blow your mind. Okay, so alright, as you can see on my reference video, यहाँ पर एक कट लगा है एंड में. ओके, ये जो कट है एकदम से जूम हो जाता है. वो बनाने के लिए we have to make another null object. I will simply click on new and add another null object. इस null object को हम कैमरे से कनेक्ट नहीं करेंगे. इसको हम जो हमारा नीचे वाला null object है इसको मैं सिंपली लिंक कर लूंगा मैं न्यू वाले null object के साथ. ओके, यहाँ पर जब हमारा ग्राफ आ रहा है यहाँ पर, ओके, समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर मैं P दबाऊंगा, पोजीशन पे की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाऊंगा, को मैं जूम कर दूंगा टू समथिंग लाइक दिस. ओके, मेक इट हियर. दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, टॉगल होल्ड की फ्रेम पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड नाउ ये ऐसे आएगा एंड देन ये ऐसे. ओके, अब ये अचानक से जब एक कट लग रहा है तो ये लाइक थोड़ा सा अजीब लग सकता है. इसको और प्रोफेशनल बनाने के लिए आई एम गोइंग टू मेक अ राइट क्लिक न्यू एंड देन ऐड एडजस्टमेंट लेयर. ओके, एंड आफ्टर एडिंग द एडजस्टमेंट लेयर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट एंड ऐड द गॉसियन ब्लर समथिंग लाइक दिस. ओके, बिलर पे मैं की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे आऊंगा अपने फ्रेम्स और इसको मैं फुल कर दूंगा. ओके, जो हमारा स्टार्ट का की फ्रेम है उसको सिंपली मैं कॉपी करूंगा, आगे आके अगेन में पेस्ट कर दूंगा. तीनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके F9 देन गो टू स्लाइडर कंट्रोल, मेक इट इजी लाइक प्लेस इट ओवर हियर. बट नाउ द थिंग we have to make is थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, something like this. Okay, maybe the slider is too much fast, so I have to make it little bit slow and move it over here. Okay, that's look really nice. जो हमारे स्टार्टिंग इससे पहले हम लोग ने चेंजेस नहीं किए थे उसमें हमारा जो टॉगल का एक जूम लग रहा था बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा था. ओके, बिफोर मूविंग फर्दर आई हैव टू ऐड अनदर टेक्स्ट एज वेल. ओके, नाउ गो टू T and add a text $3 something like this. Okay, make it align center align basically and add over here. Okay, and then मैं इसको 3D कर दूंगा जिससे होगा ये कि ये भी हमारे पास स्लाइड इन होगा. Okay, as you can see this makes a big impact. Okay, now at the end we are going to add deep glow, second last thing, and then the last thing should be like accounting numbers as well. Okay, so right now let's say I have to make accounting over here. I will simply make a text dollar and 10,000 like this. Okay, cut it over here. Okay, now I am going to place slider control like this. Make a keyframe at the beginning. थोड़ा सा आगे आना है, हमें 10,000 यहाँ पे डालना है विदाउट कॉमा. ओके, 1 2 3 हमारे पास 0 आ गए. F9 एंड देन मुझे अपनी प्रॉपर्टीज ओपन करनी है एंड जो हमारा टेक्स्ट का पैनल है इसको मैं पेरेंट एंड लिंक कर दूंगा हमारे स्लाइडर की क्लॉक के साथ. ओके, अभी हमारा कुछ टेक्स्ट ऐसा दिखता है. नाउ वी हैव दीज एक्सप्रेशंस जो हमारी काउंटिंग को 0 से लाइक अब तक लेके जाएंगे. अगर आपकी काउंटिंग 10 तक है तो इट विल मूव फ्रॉम 0 to 10. ओके, सो आई विल सिंपली copy these expression and back to my After Effects. Okay, so now I am going to open my source text properties over here, dot value to fix, and in the bracket we have to make 0 in the starting. I am going to add a comma.
and a dollar sign, comma, space, add plus sign and space. Okay, then I am going to paste that expression जो हम लोग ने भी कॉपी किए थे, and इसको जो हमारी फर्स्ट लाइन थी इसको मैं कॉपी करके अपने एक्सप्रेशंस की वैल्यू को रिमूव करके सिंपली मैं पेस्ट कर दूंगा. ओके, नाउ आवर डॉलर शुड बी लुक लाइक दिस. अब मैं इसको 3D कर दूंगा. इस पे मैं एक एनिमेशन डालूंगा ये वाली जो हमारे टेक्स्ट को स्वाइप करेगी, एंड जितना हमारा की फ्रेम आगे जाएगा लाइक उतनी टाइम की हमारी काउंटडाउन होगी. अगर मैं इसको बिल्कुल आगे लेके जाता हूँ हमारी काउंटडाउन, लेकिन अगर मुझे 10,000 यहाँ पे कंप्लीट करने क्योंकि हमने 10,000 की काउंटिंग करी है. So that's the thing. Now fast maybe is good enough. Okay, I have to edit this line kind of like this. Now this looks perfect, and then we are going to add a gradient ramp here with the starting color of blue, something like a background color, light blue maybe, something like this. Okay, add a deep blue as well, and here is our final result as you can see on screen. And I hope you found this video helpful. And at the end, do you know Iman Ghazi is editor charging thousands of dollars to make cool animations in After Effects? And what if I say you can start learning those animation in next few minutes? Just click here to watch the full video of how I break down Iman Ghazi's animation part number 1. Cheers.